A very good afternoon, everyone, and welcome to today's session. Late today. Sorry for the inconvenience caused. We'll meditate first, and then we'll start. Now, sit with your spinal cord erect. Sit comfortably. Relax your body. Relax your mind. Exhale slowly. Empty your lungs. Empty your shoulders of the burden that you will carry. Now take a deep breath in and feel the freshness, the positivity that surrounds you. Today, we will set an intention. Intention for our betterment, for upgrading our lives, for self-care and self-love. So let us take care of ourselves better each day. With peace and joy. Radiant of love in whatever I do. I work selflessly, enjoying the process. I love unconditionally. God, the ocean is filled love in my soul that I radiate. I give blessings, love, respect to everyone as gift. I speak the truth. I am honest. I keep upgrading my knowledge through self-study, through nature, through people, through all the ways. Today, I reflect on myself and find treasures of wisdom within my soul, shining brightly and showing me the path, enlightening my path. God is my companion in my journey. He is with me in every element I see. Full things today and always.
I do service selfless service for myself, for my body, mind, and soul. Service for others. Service through my work, thoughts, I radiate everything for my benefit. I strongly believe in it and I trust it. Thank you. एक घंटा लग ठीक है Thank you. फिर करवाते सी ना Om Shanti. करवाना पड़सी समझी हाँ बोल I hope my screen is visible to everyone. Today we will start chapter 14. Your क्या बात है? subconscious mind and mental problems. एक घंटा बाद करवा Ignorance दी of ना the functions and powers of the mind is the करवा देंगे cause of पक्की all marital trouble. Friction between husband and wife can be solved by each using the law of mind correctly. By praying together, they stay together. The contemplation of divine ideals, the study of the laws of life, the mutual agreement on a common purpose and plan, and the enjoyment of personal freedom bring about that harmonious marriage, that wedded bliss, that sense of oneness where the two become one. यहाँ पे मैरिटल प्रॉब्लम्स के बारे में इस चैप्टर के बारे में लिखा इस चैप्टर में लिखा हुआ है और हम कैसे सबकॉन्शियस माइंड को यूज करेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो हमें इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगा जैसे स्टार्ट हुआ करवा सी ना इम्पोर्टेंस ऑफ द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द माइंड इज द कॉज ऑफ ऑल मैरिटल ट्रबल तो ये जो ट्रबल आता है ये आता क्यों है जब हम अपने फंक्शंस और पावर्स जो माइंड के अंदर प्रेजेंट पक्की बोल रही हूँ मतलब उसको इग्नोर करवाना करने लग जाते हैं तभी सारे के सारे ट्रबल्स अराइज होते हैं वो चाहे किसी भी फील्ड में हो जो फ्रिक्शन विद जो फ्रिक्शन स्टार्ट होते हैं जैसे हस्बैंड एंड वाइफ उसको सॉल्व किया जा सकता है जब हम लॉ ऑफ माइंड को करेक्टली यूज करें जब वो लोग प्रे करेंगे एक साथ तो एक साथ रहेंगे और यहाँ पे प्रेयर का मतलब है साइंटिफिकली जो इस बुक में लिखा है कंटेम्पलेशन ऑफ डिवाइन आइडियल्स कंटेम्पलेट करना यानी कि चिंतन करना डिवाइन आइडियल्स के ऊपर स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ लाइफ the mutual agreement on a common purpose and plan and the enjoyment of personal freedom bring about that harmonious marriage, that wedded bliss, that sense of oneness where the two become one. इसको और डिटेल में जो चैप्टर में जानने को मिलेगा. The best time to prevent divorce is before marriage. यहाँ पे लाइन लिखी है कि डाइवोर्स को अगर प्रिवेंट करना हो तो उसका बेस्ट टाइम होगा बिफोर मैरिज मैरिज से भी पहले It is not wrong to try to get out of a very bad situation, but why get into the bad situation in the first place? Would it not be better to give attention to the real cause of marital problems? In other words, to really get at the root of the matter involved. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि क्या जरूरी है कि पहले किसी बैड सिचुएशन में हम जाएं ही उससे बाहर निकलने के लिए उसको अवॉइड भी तो किया जा सकता है इसीलिए मैरिज से पहले ही मैरिज को डिवोर्स को प्रिवेंट करने का बेस्ट टाइम होता है As with all other problems of men and women, the problems of divorce, separation, annulment, and endless litigation are directly traceable to lack of knowledge of the working and interrelationship of the conscious and subconscious mind. तो जैसे बाकी प्रॉब्लम्स होती है सबकी
तो उसी तरह से जो प्रॉब्लम ऑफ डाइवोर्स, सेपरेशन, अमेंडमेंट, एंडलेस लिटिगेशन, ये सब भी डायरेक्टली ट्रेसेबल है, हम इनको ट्रेस कर सकते हैं कैसे? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्किंग। जब हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। क्योंकि तब हम इग्नोरेंस में रहते हैं, अनअवेयर रहते हैं, तो हमारे थॉट्स भी उस टाइप के आते हैं, और फिर हम उन थॉट्स को चेंज करने की भी कोशिश नहीं करता है। द मीनिंग ऑफ मैरिज। मैरिज टू बी रियल मस्ट फर्स्ट बी ऑन अ स्पिरिचुअल बेसिस। रियल मैरिज क्या होती है? जो स्पिरिचुअल बेसिस में होती है। इट मस्ट बी ऑफ द हार्ट एंड द हार्ट इज द चैनल्स ऑफ लव। तो ये पहले जो हर्ट होता है उसका मैरिज होना चाहिए, उसकी मैरिज होनी चाहिए। जैसे हम कहा जाता है ना, दिल से दिल का रिश्ता, तो वैसा ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, काइंडनेस एंड इंटीग्रिटी आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ लव। लव की सारे फॉर्म्स हैं। ऑनेस्टी, अगर हम ईमानदारी रखते हैं, सिंसियर रहते हैं अपने एफर्ट्स को, अपनी सोच को लेकर के, काइंडनेस रखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो पार्टनर्स इन्वॉल्व है, तो एक दूसरे की तरफ काइंड रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, इंटेग्रिटी होगी। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ लव है। Each partner should be perfectly honest and sincere with the other. एक दूसरे के साथ perfectly honest और sincere रहना है. It is not a true marriage when a man marries a woman for her money, social position, or to lift his ego, because this indicates a lack of sincerity, honesty, and true love. Such a marriage is a farce, a sham, and a masquerade. तो अगर ट्रू मैरिज हम उसे नहीं करेंगे जिसमें कोई मैन अगर किसी औरत से शादी करे उसके पैसों के लिए, उसके सोशल पोजीशन के लिए, अपनी ईगो को लिफ्ट करने के लिए, तो ये सारी मतलब क्या है, शर्तें हैं, तो ये कंडीशनल हो जाता है। तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव नहीं, अनकंडीशनल लव जैसे पेरेंट और चिल्ड्रन का होता है ना, कि चाइल्ड भले ही कैसा भी हो लेकिन मदर उसको अनकंडीशनली प्यार करती है, तो वैसे वाला लव होना चाहिए। When a woman says, I'm tired working, I want to get married because I want security, her premise is false. She is not using the laws of mind correctly. As sexuality does, it depends upon her knowledge of the interaction of the conscious and subconscious mind and its application. सेगमेंट के बारे में भी लिखा है, अगर कोई कहती है कि वो काम करते हुए थक गई है, अभी मैं तो वो शादी करना चाहती है, अपने से सिक्योरिटी चाहिए, तो उसका भी जो प्रेमाइज है ना, शादी करने का जो फाउंडेशन है, वो भी फॉल्स है, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे तो ट्रू नहीं होगा, बर्बादी ना क्योंकि शी इज नॉट यूजिंग द लॉज ऑफ और बच्ची माइंड करेक्टली। वो तेरा कंप्लीट हो गया बस करवा दे सुनी करेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं। उसकी जो सिक्योरिटी है मैडम वो दसवीं डिपेंड करती है जो उसके मैडम थोड़ी बाद में मुझे देखा कॉन्शियस माइंड का जो इंटरेक्शन होता है, उसकी नॉलेज पर उसकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है। तो माइंड के इंटरेक्शन का हमें पता होना चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करना है, उसके लॉज को, टेक्निक को, वो हमें पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a woman will never lack for wealth or health if she applies the techniques outlined in the respective chapters of this book. कोई भी अगर वुमेन होगी उसको लैक ऑफ वेल्थ, हेल्थ नहीं फेस करना पड़ेगा अगर वो जो भी टेक्निक्स इस चैप्टर में इन चैप्टर्स में लिखी गई है बुक में, उनको अप्लाई करें। जैसे यहाँ पे शनि के बारे में भी था, हेल्थ के भी बारे में था, तो वो सब जो चैप्टर्स है हमारे लाइफ की डिफरेंट फील्ड्स को डिटेल में बताते हैं। तो अगर हम उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें, और जैसे बुक के इंट्रोडक्शन में लिखा गया था कि हम उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो सब अगर हम करने लगेंगे तो हमें कभी लैक फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर कभी ऐसा होता भी है तो उसमें सिचुएशन से हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे। Her wisdom come to her independent of her husband, father, or anyone else. A woman is not dependent on her husband for health, peace, joy, inspiration, guidance, love.
wealth, security, happiness, or anything in the world. Her security and peace of mind come from her knowledge of the inner powers within her and from the constant use of the laws of her own mind in a constructive fashion. यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जितनी भी चीजें हैं ना, हेल्थ, पीस, जॉय, इंस्पिरेशन, जो हम बाहर से सीख करते हैं, स्पेशली जो कोई की मैरिज होती है, तो उस वक्त तो यही चीज कहा जाता है ना कि सिक्योरिटी के लिए कोई करता है, कोई किसी और काम के लिए करता है। जितने भी क्राइटेरिया दिए गए हैं, जितने भी क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो वो सारे के सारे मतलब ये हमें कंडीशंस बनाने की जरूरत नहीं। मैरिज से पहले ये जितने कंडीशंस दिए गए ना कि इन क्राइटेरिया पे जो खरा उतरेगा उससे फिर मैरिज होगी, तो वो सब की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे इनर वर्ल्ड से आती है। और ये इनर वर्ल्ड से कैसे, जब हमें अपने माइंड के पावर्स की नॉलेज होती है, जैसे उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके अपनी लाइफ में अबंडेंस कैसे ला सकते हैं, तो वो हमें अपने अपने अंदर से वो प्राप्त होती है, वो मिलती है। किसी चीज के लिए शादी नहीं करते, किसी चीज के लिए मैरिज में नहीं जा रहे किसी चीज को पाने के लिए, बल्कि यहाँ पर फिर वो गिविंग वाला हो जाएगा, टेकिंग वाला नहीं रहेगा। जैसे जो क्वालिटीज ऑफ द सोल है वैसा। हाउ टू अट्रैक्ट द आइडियल हस्बैंड। You are now acquainted with the way your subconscious mind works. You know that whatever you impress upon it will be experienced in your world. Begin now to impress your subconscious mind with the qualities and characteristics you desire in a man. यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि जैसे हमें यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल रहा है। इतने सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, तो हमें ये भी पता चल गया है कि हम जो भी इम्प्रेस करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी थॉट्स हम पहुंचाते हैं, तो वही हमें अपने वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने को भी मिलते हैं। अभी स्टार्ट अगर हम कर देंगे, जैसे इसमें लिखा है ना रीडिंग में, हाउ टू अट्रैक्ट द आइडियल हस्बैंड, तो आइडियल हस्बैंड क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तो वो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस करेंगे वो हमारे आइडियाज, तो फिर उसके बाद में हमें वैसे ही रिजल्ट्स को फॉलो करने को मिलेंगे। ये फॉलोइंग इज एन एक्सेलेंट टेक्निक। अब एक टेक्निक बताई जा रही है। सिट डाउन एट नाइट इन योर आर्म चेयर। पहले अपने आर्म चेयर में बैठो, क्लोज योर आईज, लेट गो, रिलैक्स द बॉडी। अपनी आईज भी क्लोज कर सकते हैं, जैसे कल वाली कमेंट्री में भी आप लोगों ने किया होगा। उसको आईज क्लोज करने के बाद में ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हैं हम लोग कमेंट्री के भाव को। तो ठीक है, क्लोज योर आईज, लेट गो, relax the body, become very passive and receptive. Talk to your subconscious mind and say to it, I am now attracting a man into my experience who is honest, sincere, loyal, faithful, peaceful, happy, and prosperous. These qualities, which I admire, are sinking down into my subconscious mind now. As I dwell upon these characteristics, they become a part of me and are embodied subconsciously. I know there is an irresistible law of attraction, and that I attract to me a man according to my subconscious belief. I attract that which I think to be true in my subconscious mind. I know I can contribute to these peace and happiness. He loves my ideas, and I love his ideas. He does not want to make me over, neither do I want to make him over. There is
love, freedom, and respect. You will open your eyes now. तो इस कमेंट्री से हमने क्या सीखा? पहले अपने आप को रिलैक्स करना है। जब हमें सबकॉन्शियस माइंड में हमें कुछ आइडियाज अगर डालने होते हैं तो फर्स्ट स्टेप यही रहता है खुद को रिलैक्स करें, अपने माइंड और बॉडी को। उससे क्या होगा, कॉन्शियस माइंड जो है वो शांत होगा और तब सबकॉन्शियस में हम लोग डायरेक्टली उन थॉट्स को पहुंचा पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक मैन को अट्रैक्ट करने के लिए बताया गया, तो उसकी क्वालिटीज के बारे में सबसे पहले ड्वेल करना था। जैसे ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, लॉयल्टी, ये सारी क्वालिटीज जो एडमायर की जाती है उनके ऊपर पहले विचार किया। उसके बाद में हमने सबकॉन्शियस माइंड में अ, उन क्वालिटीज के एक आइडिया को हमने पहुंचा दिया और फिर इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अच्छे से ड्वेल किया और इसको ऐसे फील किया कि ये खुद का हमारा भी एक पार्ट बना है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एम्बॉडीड है। तो इसमें जो ये वाला है ना कि दे बिकम अ पार्ट ऑफ मी। अगर हम किसी में कुछ चाहते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी, तो पहले हमें खुद को भी उस चीज में मतलब उस चीज से भरना होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर हम खुद में अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे थॉट्स होंगे, तो हम वैसे ही लोगों से भी मिलते हैं जो कि अच्छे थॉट्स रखते हैं। ऐसा होता है सच में। तो पहले वो हमारे खुद के पार्ट में जाते हैं, उसके बाद में हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में कमेंट्री में ये लिखा था कि अ, एक इररेसिस्टिबल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो कि उस मैन को अट्रैक्ट करके दे रहा है। और यहाँ पे ये भी है कि आई फील टू बी ट्रू इन माई सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी हमें इस बुक में भी ये बताया गया है ना कि लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उस चीज को एक बार इग्नोर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमें पॉजिटिव बिलीव डालने हैं। उस चीज को फील करना है, उस चीज को बिलीव करना है। क्योंकि जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने आंतरिक जगत में जो चीज सच मानेंगे वो चीज फिर सच होगी ही होगी। और इसके बाद एक और लाइन काफी अच्छी थी, आई नो आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस पीस एंड हैप्पीनेस। तो जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ लेना नहीं है किसी से, हमें उनको देना भी है। हमने उन सारी क्वालिटीज को पहले खुद में भरा और फिर वैसे एक इंसान को अट्रैक्ट किया और उसकी पीस और हैप्पीनेस में भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और एक दूसरे को हम कुछ बनाना नहीं चाहते, जो जैसे है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे लव, फ्रीडम और रेस्पेक्ट ये म्यूचुअली दिया जा रहा है। तो ये हमने इस कमेंट्री में देखा। Practice this process of impregnating your subconscious mind, and you will have the joy of attracting to you a man possessing the qualities and characteristics you mentally dwelt upon. Your subconscious intelligence will open up a pathway whereby both of you will meet according to the irresistible and changeless flow of your own subconscious mind. Have a keen desire to give the best that is in you of love, devotion, and cooperation. Be receptive to this gift of love which you have given to your subconscious mind. तो अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे इस प्रोसेस को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ, वो वाले थॉट्स को डालते रहेंगे, तो फिर एक ऐसा इंसान जरूर अट्रैक्ट होगा। और इसमें ये भी लिखा है कि हैव अ कीन डिजायर टू गिव द बेस्ट। तो हमें हमारे मन में डिजायर होनी चाहिए कि अपना बेस्ट दे सकते हैं। ये जो लव, डिवोशन और कोऑपरेशन में अपना भी बेस्ट देना है। और ये जो गिफ्ट ऑफ लव है जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया है इन थॉट्स से, इन एफर्मेशन से, उसके लिए रिसेप्टिव भी होना पड़ेगा। रिसेप्टिव होंगे तब वो फिर गिफ्ट वापस मिलेगा। How to attract the ideal wife. अभी ideal husband वाला था, अभी ideal wife. Affirm as follows. I now attract the right woman who is in complete accord with me. This is a spiritual union because it is divine love functioning through the personality of someone with whom I blend perfectly. I know I can give to this woman love, light, peace, and joy.
I feel and believe I can make this woman's life full, complete, and wonderful. I now decree that she possesses the following qualities and attributes. She is spiritual, loyal, faithful, and true. She is harmonious, peaceful, and happy. We are irresistibly attracted to each other. Only that which belongs to love, truth, and beauty can enter my experience. I accept my ideal companion now. As you think rightly and with interest on the qualities and attributes which you admire in the companion you seek, you will build the mental equivalent into your mentality. Then the deeper currents of your subconscious mind will bring both of you together in divine order. टाइटल वाइफ वाले में भी affirmations में लिखा गया है कि जैसे जो क्वालिटीज थी उनके ऊपर ड्वेल किया और उनसे खुद को भी भरना है और इसमें भी लिखा है ना कि I know I can give to this woman love, light, peace and joy. तो सिर्फ टेकिंग वाला नहीं, यहाँ पे गिविंग वाला भी है। ये चीज याद रखना है। और I feel and believe I can make this woman's life full, complete and wonderful. तो दोनों तरफ से ही हो रहा है। इधर पे सिर्फ सेल्फिश मोटिव नहीं है, मतलब टेकिंग वाला ही सिर्फ नहीं है, यहाँ पे गिविंग वाला भी एक इंटेंशन है। No word mistake. Recently, a teacher said to me, I have had 3 husbands and all 3 have been passive, submissive, dependent on me to make all decisions and govern it. Why do I attract such type men? एक टीचर ने रिसेंटली पूछा कि उनके 3 husbands थे और सब ऐसे passive, submissive, dependent थे जो कि सारे डिसीजंस के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। तो उस टीचर ने ऑथर से पूछा कि वो इसी टाइप के मेन पर ट्रैक क्यों करते थे। I asked her whether she had known that her second husband was the effeminate type, but she replied, of course not. Had I known, I would not have married him. Apparently, she had not learned anything from the first mistake. The trouble was with her own personality. She was very masculine, domineering, and unconsciously wanted someone who would be submissive and passive so that she could play the dominant role. All this was unconscious motivation, and her subconscious picture attracted to her what she subjectively wanted. She had to learn to make the pattern by adopting the right prayer process. ऑथर ने कहा कि ऑथर ने उनसे पूछा था कि उनको अपने सेकंड वाले टाइम पे पता था कि वो इस टाइप पे थे, तो उन्होंने बोला कि अगर उनको पता होता तो वो शादी नहीं करती उनसे। तो ऑथर बता रहे हैं कि ये जो काफी मैस्कुलाइन डोमिनेटिंग थी और ये अनकॉन्शियसली चाहते थे कि कोई ऐसा ही रहे जिनको ये डोमिनेट से कुछ सीखा नहीं, जो सब्जेक्टिवली चाहते थे उन्हें वही मिला। तो इनको अपने पैटर्न को ब्रेक करना होगा राइट प्रेयर प्रोसेस से। हाउ शी ब्रोक द नेगेटिव पैटर्न, तो कैसे उन्होंने अपने नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक किया। The above mentioned women learned a simple truth. When you believe you can have the type of man you idealize, it feels done and so good as you desire. जो affirmation story हमने women की पढ़ी, उन्होंने एक सिंपल ट्रुथ लर्न किया कि जैसा वो बिलीव करेंगे, जिस टाइप के मैन को वो आइडियलाइज करेंगी वैसा ही उन्हें मिलेगा। The following is the specific prayer she used to break the old subconscious pattern and attract to her the ideal me. तब इनका specific prayer दिया गया है जिससे उन्होंने ideal me को attract। I am building into my mentality the type of man I deeply desire, the man I attract for. My husband is strong, powerful, loving, very masculine, successful, honest, loyal, and faithful.
He finds love and happiness with me. I love to follow where he leads. I know he wants me and I want him. I am honest, sincere, loving, and kind. I have wonderful gifts to offer him. They are goodwill, a joyous heart, and a healthy body. He offers me the same. It is mutual. I give and I receive. Divine intelligence knows where this man is, and the deeper wisdom of my subconscious mind is now bringing both of us together in its own way, and we recognize each other immediately. I release this request to my subconscious mind, which knows how to bring my request to answer. I give thanks. So, in a तो उसमें भी इन्होंने उन क्वालिटीज के ऊपर कंटेम्पलेट किया जो उन्हें चाहिए अपने हस्बैंड में। और इसमें भी इन्होंने वो गिविंग वाला भी रखा कि जैसे ये भी ऑफर करती है जो वंडरफुल गिफ्ट है, जैसे गुडविल। गुडविल हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको बड़ा गिफ्ट होता है जो सच में किसी को दे पाते हैं। जॉयस हर्ट, ये भी एक जॉयस होता है तो हम अच्छे अच्छे थॉट्स रखते हैं, अच्छे थॉट्स रखते हैं, दूसरों के लिए भी शुभकामना रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है और हेल्दी टॉपिक। और ये म्यूचुअल है। आई गिव एंड आई रिसीव। तो यहाँ पे गिविंग और रिसीविंग दोनों का दिखा गया। सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि गिविंग वाला भी रखा गया, वरना लोग जब ऐसे अट्रैक्ट वगैरह करने की बातें करते हैं तो वो लोग सिर्फ टेकिंग के ऊपर ही ध्यान रखते हैं, लेकिन ऑथराइटिंग इसमें बहुत ब्यूटीफुली बताया है। She prayed in the Abbot manner night and morning, affirming these truths and knowing that through frequent occupation of the mind, she would reach the mental equivalent of that which she sought. तो इस तरह से उन्होंने नाइट मॉर्निंग सब भी एफर्मेशन बोले, प्रैक्टिस किया कि वो इन्हें परफेक्ट आंसर मिले अपने प्रेयर का। हम कल देखेंगे the answer to her prayer, इन्हें आंसर कैसे मिले। So today we will stop our session here. You can share your takeaways and feedbacks now. For joining. शांति सिस्टर। ओम शांति अनुराधा सिस्टर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी जी, आज का सेशन तो बहुत ही डीप था। मतलब मैं इस बारे में मैंने वीडियोस भी देखे थे कई सारे कि हम वर्क रिलेशनशिप क्यों हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं और फिर हम जैसे चाहिए वैसे नहीं आते हैं। वैसे बहुत सारे मटेरियल भी है, तो ऑथर ये कह रहा है कि आपको वही लोग मिलते हैं जो आप आपकी लाइक आवाज कट रही है। अगर आप या लाइक आपके जीवन में वही लोग आते हैं जो आप जो जो आपके अंदर कुछ कमी है। जस्ट लाइक रिलेशनशिप्स आर लाइक मिरर्स। ओके, तो अगर आपके जीवन में कुछ कमी, जस्ट लाइक आप ये एग्जांपल ये है कि एक वुमन है, शी इज वेरी डोमिनेटिंग, सो शी अट्रैक्ट्स gets attracted to them unconsciously so that she can correct her behavior and she can be more humble and let go करने वाली। अगर जैसे वो अडॉप्ट करती है वो वैल्यूज, तो उसको वो वाले हस्बैंड आते हैं जो उसका फ्रीक्वेंसी मैच होता है। हेलो। हाँ ठीक है जी। हाँ, आवाज आ तो रही है। कोई कोई या तो कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि कोई लोग थोड़े अब्यूसिव रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करते हैं अननोइंगली। दे गेट अट्रैक्टेड टू सच अब्यूसिव हस्बैंड्स, या कोई अगर कोई ये है
तो कोई पैसे उड़ाने वाले या फिर आपको यूज करने वाले ऐसे लोग भी आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत सारी टर्बुलेंट एनर्जी है जो आपने हील नहीं की है। तो ये आईना है, बताते हैं कि आपके अंदर बहुत सारा अब्यूसिव बिहेवियर है अपनी तरफ, अपने लिए। दैट्स व्हाई यू गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु अब्यूज यू। अगर आपके अंदर प्यार है तो आपको वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो आपको प्यार दे सकते हैं। आपके अंदर नफरत है तो वही लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो नफरत वाले लोग ही अट्रैक्ट होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स आपके अंदर क्या है, वही बाहर भी वही आता है। तो इसका मतलब यही है कि हमको बाहर कुछ चेंज नहीं करना है कि मुझे ये ऐसा चाहिए वैसे चाहिए, हमें वो बनना है। इफ यू वांट a loving husband, you should be a loving person. Then only you can attract a loving partner. So these relationships, they are just like mirrors. तो हम अगर ऐसे ट्रीट करते हैं तो हम जो भी अगर टर्बुलेंट रिलेशनशिप्स में है, नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशनशिप या ऑफिस कलीग या फिर कोई भी फैमिली मेंबर्स, अगर आपके अंदर कोई कोऑपरेशन नहीं है तो इसका मतलब आप अपने अंदर की वो कमी है वो ही बताने के लिए ये रिलेशनशिप्स आते हैं। आपके जीवन में जो लैक है वो बताते हैं, जैसे जो अंधकार है वो बताते हैं। सो फॉर मी द टेक अवे इज relationships are like mirrors. They come to show what you lack and what you want, what you have to learn. That is what. थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर योर टेक अवे। आपका टेक अवे ध्यान से सुनने से भी बहुत लोगों को फायदा होगा। आपने जैसे बोला रिलेशनशिप्स आर लाइक मिरर्स, ये लाइन मतलब काफी सही है। अगर कुछ भी गलत होता है Yeah, तो हम अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें अपनी कमी समझ में आती है। इसको yeah. ध्यान से चिंतन करना पड़ता है। थैंक यू सो लेकिन मच। लोग कहते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत किया, लोग ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ब्लेम करेंगे तो आप अपने पैटर्न्स, जो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स है, वो आप बाहर नहीं आ सकते, चाहे आप कितने भी पार्टनर बदल लो। मगर वही लोग आपके आसपास अट्रैक्ट होते हैं कि जो एनर्जी आप रेडिएट करते हैं वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। उसी टाइप के लोग आपको अट्रैक्ट होते हैं। That is what I learned. Om Shanti. थैंक यू। सिस्टर, थैंक यू अनुराधा सिस्टर। We will meet tomorrow.